Hello students, today we are going to start English chapter 1 to any reader, किसी भी पाठक को, किसी भी पढ़ने वाले को। पॉन्डर ओवर मीन बहुत देर तक सोचने वाले विषय। विंडोज ऑफ द बुक, इंटेंट, प्ले विटनेस, लर्स, टाइड ऑफ हेयर, लिंगर। आई विल गिव ऑल these word meaning in the evening. Let's start the chapter. As from the house, your mother sees you playing round the garden tree. खिड़कियों से आपकी माँ देखती हैं कि आप बगीचे के चारों तरफ खेल रहे हैं. So you may see if you will look through the windows of this book. तो आप देख सकते हैं अगर आप देखेंगे through the windows of this book. इस किताब के माध्यम से. Another child far far away and in another garden play. एक और बच्चा दूर बहुत दूर और एक दूसरे बगीचे में खेलता है. But do not think you can call at all by knocking on the window. Call. पर आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि आप नहीं कर सकते दरवाजे पर दस्तक देकर, खटखटा के, फोन करके, कॉल करके, बुला के. That child to hear you. वह बच्चा आपको सुनने के लिए. He intent is all on his play witness bent. वह अपने खेल में पूरी तरह से मग्न है. He does not hear. वह नहीं सुनता है. He will not look. वह नहीं देखेगा. Nor it will let out of this book. और न ही इस पुस्तक से बाहर लाया जा सकता है. For long ago. बहुत समय पहले. The truth to say. सच कहने के लिए. He had grown up and gone away. वह बड़ा हो गया है और चला गया है. And it is but a child of air. और वह कोई नहीं हवा का एक बच्चा है. That lingers in the garden there. और वह वहाँ बगीचे में टहलता था. This poem is composed by Robert Louis Stevenson. यह कविता रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन द्वारा लिखी गई है. वर्ल्डपीडिया मीन्स शब्द भंडार. Here we have word meanings English to English. You have to write these word meanings in your notebook and learn it. Now come to the oral assignment. A. Take correct the option. The poet here addresses to the reader. Option A, reader is right answer because the poet here addresses to the reader. क्योंकि कविता में जो कवि है वो पढ़ने वाले को एड्रेस कर रहा है, इंगित कर रहा है. So option A is right. Second, the reader cannot join the child playing near the tree. कविता में किताब पढ़ने वाला पाठक किताब के अंदर के बच्चे को ज्वाइन के साथ खेल नहीं सकता, ज्वाइन नहीं कर सकता. इसलिए ज्वाइन इज द राइट आंसर. वह बच्चे को बुला सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है, बुक को बंद करके बच्चे को डिस्टर्ब कर सकता है, बच्चे को बुला सकता है बाहर से आवाज़ें देके, पर बच्चे के साथ बुक के अंदर जाके खेल नहीं सकता. दैट्स व्हाई ज्वाइन इज अवर राइट आंसर. थर्ड, द बुक अकॉर्डिंग टू द पोएट इज. कवि के लिए यह किताब है विंडो टू द अनदर वर्ल्ड. ऑप्शन ए इज राइट. कवि के लिए यह किताब दूसरी दुनिया में जाने का एक दरवाजा है, खिड़की है. फोर्थ, द चाइल्ड इन द बुक इज अंडर द वॉच ऑफ. इस कविता में किताब के अंदर का बच्चा किसके निगरानी में रहता है. द रीडर हु कैन कॉल हिम. किताब को पढ़ने वाला जो रीडर होगा उसी की निगरानी में किताब के अंदर का बच्चा होता है. सो आवर ऑप्शन इज सी. द रीडर हु कैन कॉल हिम इज राइट ऑप्शन. सो टिक सी. द चाइल्ड ऑफ द पोएम हैड ग्रोन अप. पोएम में हमने आपको बताया कि बच्चा बड़ा हो चुका है और वह चला गया है. सो आवर ऑप्शन इज ग्रोन अप. ग्रोन अप मीन्स बड़ा हो गया है. Find out 4 pairs of rhyming words from the poem. First, seeds, trees. Seed means देखता है या देखती है. Trees means पेड़.
look, book. Look means देखना, book means किताब. All, call. All means सभी, call means फोन करना, बुलाना. Ear, there. Ear means हवा, वायु. There means वहाँ. Writing assignment. These are the questions. I will give answers of all these questions in the evening. Now we have been answered the following questions. All these questions answers I will give you in the evening. Come to the next language skill. This is your homework. You will do it in your book. Countable and uncountable noun. You will write this in your notebook and learn it. B. Write the suitable nouns in associated column. We have two columns, countable, uncountable. These are some countable and uncountable nouns here. You have to fill countable in countable, uncountable in uncountable lines. C. Add the suitable nouns with the following methods. You will also write this in your copy. A pinch of powder. A pinch of means एक चुटकी पाउडर. जैसे आपने मूवी में देखा होगा, सुना होगा, दीपिका पादुकोण ने एक डायलॉग बोला था, अ पिंच ऑफ, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो. सो यहाँ पर अ पिंच ऑफ एक चुटकी पाउडर. अ कप ऑफ टी. अ कप ऑफ टी मीन्स एक कप टी. अ बार ऑफ आयरन. बार मीन्स छड़, रॉड, लोहे का छड़. एन अमाउंट ऑफ मनी. अमाउंट मीन्स राशि, जमा राशि. पैसे को हम लोग जमा करते हैं, राशि होती है. सो एन अमाउंट ऑफ मनी. अ स्पून फुल ऑफ शुगर. स्पून फुल मीन्स एक पूरा चम्मच. शुगर से, चीनी से भरा हुआ एक पूरा चम्मच. स्पून फुल ऑफ शुगर. अ ड्रॉप ऑफ वाटर. पानी की एक बूंद. एम्पल ऑफ टाइम. एम्पल मीन्स समय का एक भाग, हिस्सा, समय का एक हिस्सा. एम्पल ऑफ टाइम. अ पीस ऑफ गोल्ड. पीस मीन्स भाग, गोल्ड मीन्स सोने, सोने का एक भाग. This is all for the chapter. We will understand the next chapter in the next video. Thank you.